Hi everyone, this is Shinu Kawatra and welcome to the next episode of इंसान बनो podcast where we are talking about an inspirational personalities जो मुझे inspiration देती है और जो मुझे inspirational लगती है उनके साथ हम बात करते हैं. So यहाँ पे हम ये जैसी सी जगह पे है. Firstly, thank you to our venue partner that is Tizoy जिन्होंने इतनी खूबसूरत जगह दी है और इतने टाइम के लिए दी है कि हम फुल ऑन मज़े ले रहे हैं यहाँ पे और मज़े लेने के बाद हमने शूट स्टार्ट किया है एंड थैंक यू टू देम फॉर बीइंग वेरी सपोर्टिव टू अस. विद दैट इन दिस जैज़ी प्लेस आई हैव समवन हु इज़ सुपर जैज़ी, सुपर हॉट modern girl who has a heart of India, who is super religious, who is super human for me. That is Mia Lakra. Welcome to my show where we'll be talking more about our life. We'll be talking more about you. And जो gossiping है दुनिया में कि Mia Lakra is super model, Mia Lakra is someone मॉडर्न, बहुत एटीट्यूड वाली है, वो आज लोगों को शायद पता चल जाए कि वो एटीट्यूड के साथ कितना ग्रैटिट्यूड है आपने. वेलकम टू माय शो डार्लिंग. आई होप दिस शो रॉक्स. First of all, thank you so much, Shinu, for such an amazing, wonderful introduction. I mean to say, I love it when someone introduces me in that way. And second of all, I've heard a lot about you and I've seen your podcast, and I'm really very happy that you've chosen me. And I'm one of the personality you've chosen in Insan Bino podcast. So yeah, let's get started. Yeah, so basically I know everything about you. I am not a person who gives a formal introduction to anyone. You are a fame, or you started from Day to Date where Andy was one of the amazing super cute hosts, and then you came to Splitsvilla, 8, 9 and a lot of other famous shows which youngsters die to go there. Yes, so yes. I know how much I was dying to be in Splitsvilla, but because of my body shape I couldn't be there. मैंने देखा है Splitsvilla में सिर्फ हट्टे कट्टे बिल्डर 6 एप्स वाले लोग ही लड़के ही जा सकते हैं, हम जैसे तो फैमिली पैक लेके नहीं जा सकते. बट yes, tell me about that journey. Tell me what is real, who is real Mia? Okay, real Mia, Chinu, is totally opposite of what maybe the audiences, viewers know or must have seen Mia Lakra on screen. So because जो real Mia है ना, वो totally बहुत simple, जैसे girl next door होती है ना, वैसे ही एक Mia Lakra है. It's just like she's bit modern, bit educated as compared to the rest of the people. And I'm sort of person mixture of bit of homely, bit of modern, bit of corporate. So मैं like proudly बोल सकती हूँ कि I'm one such girl जो घर भी संभाल सकती है, जो बाहर भी संभाल सकती है, who can handle relationship, who can be religious at times. So I consider myself a multitasking person. लेकिन definitely not जो आपने starting में बोला कि बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बहुत attitude वाली हूँ, घमंडी हूँ, arrogant हूँ या super expensive even to manage, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सुनने में आती हैं. आजकल ना लोगों को एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है, that is एक बीमारी है जो कोरोना से भी बेकार है, वो है जजमेंट. ये हर जन ना एक जजमेंट पाल लेता है और वो जजमेंट की वजह से वो बिना जाने आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेता है और जिसकी वजह से शायद हम डाउनफॉल फील करते हैं, हम अपने आप को और सैड फील करते हैं. बट आई सपोज यार वी शुडंट थिंक अबाउट द जजमेंट ऑफ पीपल. बट हाँ, एक आपके सोशल मीडिया को देख के डेफिनेटली आई वाज आल्सो वरी कि आई एम मीटिंग एज अ सुपरस्टार, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड शी विल बी हैविंग वगैरह वगैरह. बट the moment I saw you, I got that warmth from you. I got that thing कि यार ये तो यार normal लड़की है. She's not a celeb वाली feel where she's coming and flaunting her glare, she's flaunting her makeup and no this that. आप चुपचाप आ गए जहाँ पे कैमरा लगा, आप बैठ गए हो. मैंने यूजुअली सेलिब्रिटीज देखे, नहीं कैमरे का ये एंगल सही नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता. बट यू आर अ सेलेब हु हैज़ अ बिगर हार्ट, आई वुड से. सो हाउ डिड दैट हैपन एंड what you want to say about the gratitude is all about attitude? Chinu, I would say one should never forget where he or she is coming from. Right. So I'm really very happy. The family I come from, they're very supportive. I belong from a Roman Catholic family जहाँ पे culture itself is very modern, yet very valuable. जहाँ पे आपको modern रहना भी बताते हैं, plus how to be grounded and how to be always grateful and be that gratitude वाले sense of growth. So मेरे अंदर इसलिए भी घमंड अकर नहीं है because
मेरे घर में से ना कोई मॉडलिंग और एक्टिंग फील्ड में से कोई भी नहीं है, सो मेरे बस डैड का एक थंब रूल था कि बेटा जो भी करना है करो, इट जस्ट लाइक यू विल नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज विद स्टडीज, फॉर विच आई डिड माई जो नॉर्मल स्कूलिंग होती है, फिर ग्रेजुएशन होता है, फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश जर्नलिज्म करा, फिर फ्रेंच सीखा, सब कुछ करा, एंड देन सबको पता होगा मुझे क्रिमिनल जर्नलिस्ट बनना था, बट लैंड अप इनटू दिस एक्टिंग मॉडलिंग, सो ये सब चीज़ें। दूसरा वही चीज़ है, मैं ये परसेप्शन वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बिकॉज लोगों को ये लगता है जैसे सोशल मीडिया देखा लोगों को लगेगा ऐसा है वैसा है, बट कोई आके मुझसे तो बात करो गाइज, आई मीन टू नो मीन रियल इंस्टेड ऑफ रील, आई वुड से रियल मियाँ इज जो आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा आपको देगी, चाहे इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप बॉन्ड या इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग हैंड्स, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ वट एवर यू वॉन्ट, मियाँ लाकर शी विल गोना बी देयर बाय योर साइड. So basically, I would tell my audience also, you are free to text her, talk to her, and you won't feel that she has that attitude, because I have understood that. Moreover, I want to know about how was your life journey, because people usually see that 300-400K, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या समय लगा, क्या मेहनत लगी, बिकॉज आजकल ना सिर्फ लोग इंस्टाग्राम से ही हमें जज कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि सोशल मीडिया हमारा जायज़ी नहीं है तो हम इंसान जिंदा नहीं रहेंगे, और जबकि ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो बिना सोशल मीडिया के जिंदा हैं, दे आर वेल नोन, दे आर अर्निंग मनी एंड ऑल, सो वो जर्नी तक देयर आर मेनी इन्फ्लुएंसर्स हु आर सीइंग यू राइट नाउ, दे वांट टू नो, they have started the career right now as an influencer, so what is your one advice to them कि वो 300-400K तक कैसे पहुँचे, या खरीद ले 400 फॉलोवर 400K फॉलोवर, या मेहनत करें. Guys, as everyone says, even I'll gonna add on that, there is no shortcut for success. तो यार जहाँ तक मैंने आपने बोला 300-400K फॉलोअर्स या इंशाल्लाह आगे और भी बढ़ूंगी, वो मैंने बेबी स्टेप लेके किए हैं, एंड मैं अभी भी आज तक भी बेबी स्टेप लेने में बिलीव करती हूँ. वाई? बिकॉज जो आपकी मेहनत है, टैलेंट है, वो आपसे कोई छीन के नहीं लेगा. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप किस चीज़ से प्रिविलेज्ड हो या क्या लिंक लीज है XYZ, बट डू नॉट फॉरगेट टू डू द हार्ड वर्क. सो मेरे जो स्ट्रगल्स रहे हैं, like a normal people, of course, I didn't have any godfather, I didn't know about any agency. अपने normal college जा रही थी तो किसी photographer ने he captured my face and then he told me that I resemble Naomi Campbell. I didn't even know who she is. So when I googled her up and I was like, shit, she's so like, or maybe I am so like her, she's so like me. वरना ना स्कूल और कॉलेज में आपको पता है हर कोई ना वो स्किन टोन को लेके टीज करता, हम बड़े बोलते हैं कि हम ऐसे हाई सोसाइटी में हैं, बट इंडियन मेंटालिटी would be same. So I've been bullied a lot for my skin tone, if not directly, indirectly. And then lips, मैं बहुत से इंटरव्यूज में बोलती हूँ कि lips के ना people pay and they get that lip job done, but guys, let me tell you, this is my original one. I haven't got them surgery done or whatever it is. So इन सब चीज़ों के ना बचपन में मुझे बड़ा ही वो परेशानी हुई थी, I'll be honest. And then जैसे आपने बोला स्प्लिट्स विला, जैसे आपने अपने आप को बोला कि हम जैसे लोग नहीं जाते हैं, सो मेरे अंदर भी एक मिथ था कि स्प्लिट्स विला सिर्फ गोरे चिट्ठे लोगों को लेके जाते हैं या बड़े हाई फाई लोगों को लेके जाते हैं. सो आई ऑल्सो ट्राइड ट्वाइस थ्राइस आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम वी चैनल. एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, मैंने तीसरी बार सोचा कि साला फिक्स्ड होता होगा, ये सिर्फ गोरे गोरे लोग जाते हैं, ये होता है वो होता है. बट नो, एज आई टोल्ड यू गाइज, जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए जाएं, बी इट योर एंटरटेनमेंट फील्ड, कॉर्पोरेट या व्हाटएवर इट इज़, R&D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज बिलीव इन टेकिंग बेबी स्टेप. तो मैं ना पहले तो राइट एजेंसी को ढूंढा, पकड़ा कि भाई कौन ऑडिशन करवाता है. फिर ऑडिशन के बाद मैंने अपनी प्रोफाइल सबमिट करी, उसके बाद फिर मैंने जितने फेलो कंटेस्टेंट्स था उनका वो ऑडिशन टेप देखे, फिर प्रॉपर मैंने होमवर्क करके गई, तब मैंने क्रैक कर लिया. There is a homework which everyone should do before seeing their success. Yes. Because usually what happens कि हम success देख लेते हैं और उनकी back end की मेहनत जरा नहीं देखते. So with this I want to know, I am sure there will be many challenges, many obstacles in your life. So any one you can name or you can talk about your challenge which. Challenge. चीनू ऐसा चैलेंज मुझे नहीं हुई, बट एक चैलेंज डेफिनेटली हुआ, एज आई टोल्ड यू दैट माई कॉम्प्लेक्शन जो मुझे टीनेज या फिर कॉलेज सेंस में जो मेरे कॉम्प्लेक्शन मेरे अगेंस्ट हो रही थी कि मियाँ मतलब किसी भी चीज़ में ना हमेशा मुझे पीछे रखा जाता था. टुडे this complexion is playing like a USP for me. You won't believe, Mia Lakra is known for her complexion, Mia Lakra is known for her boldness. Mia Lakra चाहिए क्योंकि वो अच्छा बोलती है, वरना मेरे एक्सेंट को भी लेके इतना मजाक बनाया जाता था. बट नाउ आज के डेट में Mia Lakra को एक सेंटेंस बोलना है, भाई इतने पैसे दो,
मियाँ लग रहा का फेस चाहिए भाई इतने पैसे दो. बट गाइस ये इतने आसानी से नहीं आया. As I said, I've literally struggled a lot to make Mia as a brand. चाइल्डहुड बुलीज और चाइल्डहुड जो हम ट्रॉमा सहन करते हैं उसको हम अगर अपने स्ट्रेंथ बना ले तो आई सपोज बहुत बड़ा. और सेम सिचुएशन मेरी थी मेरे स्कूल में. सो सिंस आई हैड नो boys as friends, I always had girl as friends in my school days. So I was known with a very very bad word which was chamdi, कि मैं सिर्फ चमड़ी हूँ, लड़कियों के साथ में घूमते रहता हूँ. But I would say today I have all those female people with me and all that warmth with me, and I am known to take care of females. I am known to give warmth to females. I am known because my female followers are more comfortable with me. They know that ke with me they are not in a wrong hand. So today those people who used to bully me, now they come up with some or the other work to me. Yeah, high five, it happens. So that bully thing, if you take it very strongly and if you fight with that bully of yours, I was body shamed. मतलब मैं मोटापे के ऊपर हमेशा हंसते थे स्कूल वाले, क्योंकि मैं पेट के ऊपर मेरी ट्राउज़र पहनता था और शॉर्ट्स पहनता था स्कूल में यूनिफॉर्म में. एंड इट वाज ऑलवेज पीपल यूज्ड टू लाफ ऑन मी. एंड नाउ आई नो दैट हाउ मच आई आर पेड to wear clothes and post them on Instagram and everything. So it is all a journey where you have to be super strong. With this, do you feel that ever you were in depression or something which was I would not quote depression, but a mental health trauma? Did you go through that sometime? As such, I won't say depression, but Chinu, I've been a little unlucky in terms of relationship, I would say, because I told you I'm really very happy with my family scene, happy with the life I'm blessed with, because since childhood I've been really blessed with everything. But then when you come to a stage or a level, I'm very much independent, very confident about myself. But relationship में क्या हो जाता है यार? I don't think so. It's easy to date an independent woman, I would say. Independent या फिर a girl who is doing really good for herself. तो इस चीज़ में है, I've been heartbroken. So the story of being heartbroken is it goes on. I too have a similar story where many times the heart has been broken, and मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि सिर्फ रिलेशनशिप की जो शिप है वो मेरी हमेशा डूबती रहती है और बाकी सारी शिप्स मेरी चलती रहती है. तो हाँ, एक और मैं ट्रॉमा ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो फेम जिसको मिलता है ना, इट्स नॉट सो इजी टू हैंडल. तो जब आप टीवी के इस साइड होते हो, सडनली वहाँ जाते हो तो यू फील गुड अबाउट इट. बट जब कर रियलिटी शो करके आप बाहर आते हो ना, तो इट्स वेरी हार्ड टू टेल दी व्यूअर्स एंड दी ऑडियंसेस कि यार जो आप शो पे थे वो शो पे थे. तो जैसे मैं स्प्लिट्सविला से आई, आई वॉज इंजॉइंग द फेम कि लोग मुझे पहचानते थे, सेल्फी खींचते थे, यहाँ वहाँ बुला रहे. बट on the other hand, the way these people pull you down, pass on such stupid, very negative comments on social media. आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, अरे आप तो ऐसे थे टीवी पे, अरे आप तो ऐसे थे, आप इतने गंदे लग रहे थे, आपने ये पहना, वो कहा, ये किया, वो किया, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे लड़ते झगड़ते हो? तो ये चीज़ ना आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव से पढ़ते हैं, दैट रियली अफेक्ट्स मेंटली. और मैं दिखती बहुत हाउ शुड आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, बट गाइज आई थिंक मैं भी इंसान हूँ. मतलब मुझे सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है. कोई अननेसेसरी स्टूपिड कमेंट लिख रहा है, एंड बीइंग अ गर्ल हु लाइक्स टू हियर सच स्टूपिड नेगेटिव टैग्स. तो प्लीज गाइज डू नॉट जज एनीवन ऑन द बेस ऑफ रियलिटी शो और एनी शो. आई वुड. तो यार ये सोशल मीडिया जो ट्रोलिंग है ना, ये लिटरली बहुत बोरिंग हो चुकी है, बिकॉज पीपल डोंट नो कि बैक एंड पे हम क्या फेस करते हैं. अभी हाल ही में क्या हुआ पता है, मेरा एक पॉडकास्ट के लिए डाला था मैंने, आई वाज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी. उस पे एक रैंडम सा बंदा आके मैसेज करता है, तू अपनी शादी तो बचा नहीं पाया और दूसरे को क्या पॉजिटिविटी देगा. और सबसे घटिया क्या लगता है, दीज पीपल ऑडेसिटी तो होती नहीं आपके रियल अकाउंट से कमेंट करने के लिए, फेक अकाउंट या पता नहीं क्या हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं. अगर पूछना है तो डीएम कर ले. आई एम सो ओपन टू माय डीएम्स. आई रैंडमली रिप्लाई टू एवरी स्ट्रेंजर हूएवर मैसेज मी. अगर तू प्रॉब्लम है मेरी शादी के बारे में, इतना ही कंसर्न है तुझे, तो पूछ लेता. आई नो, बट इट इज़ डिजास्टर यार. और ऑनेस्टली ट्रोलिंग से तो यार बहुत तबाह होता है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. इट इज़ अ नाइटमेयर फॉर एवरीवन हु इज टॉकिंग अबाउट ट्रोलिंग. एंड नाउअडेज बॉलीवुड इज गेटिंग ट्रोलिंग. कोई पिक्चर आ रही हो,
कोई पिक्चर की वैल्यू ही नहीं है, मतलब उसके पीछे इतने लोग लगे, इतना पैसा लगा है, आप सिर्फ 1 मिनट में बोल देते हो यार पिक्चर बेकार है। तो आई वांट टू नो दिस, आपने बोल दिया आप घरेलू हो, आप ये करते हो, बट टेल मी वन थिंग, डू यू नो टू कुक, डू यू नो टू यूजुअली ये ना अभी फिर वो फेमिनिज्म वाला आ जाएगा, लड़कियों क्या कुक कर सकते हैं, तो मैं भी कुक कर सकता हूँ भाई, मुझे भी कुकिंग आती है। इट इज़ नॉट अबाउट फेमिनिन और मेन वाला ऐसा, बट सिंस आपको देख के ऐसा डेफिनेटली पीपल विल मेक परसेप्शन, ये तो यार काम नहीं करती हो। हाँ तो नहीं मैं चीटू यहाँ पे आपको आई वुड लाइक टू करेक्ट योरसेल्फ। मैं सिर्फ बोलती नहीं, आई ऑलवेज बिलीव इन डूइंग इट इन प्रैक्टिकल। बोले तो मुझे जेन्युइनली खाना बनाना आता है, मुझे लाइक बेसिक जो दाल रोटी से लेके फैंसी स्टफ भी बनाना आता है, बिकॉज हमारे घर में एक थंब रूल है, जैसे आपने बोला ना मेल या फीमेल हमारा कुछ नहीं देखा जाता, फैसिलिटी सब कुछ है, सर्वेंट नौकर चौकर, बट even my brother knows how to cook, even I know how to cook, even my sisters know how to cook. So हमारे घर में ये चीज़ है कि सर्वेंट सब कुछ देख लेंगे, बट किचन का खाना जो मेन है वो घर में से ही कोई बनाएगा। सो हेल्पिंग हैंड ले लो। सो इन दैट केस आई नो एवरीथिंग कि कल को अकेले भी छूट जाओ बिना सर्वेंट के रहो, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एग्जैक्टली, आई हैव अ फॉर्मूला इन माई लाइफ, ठीक है, जो मैंने ना बचपन में हम सब ने पढ़ा, a+b², पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वगैरह। But now, according to my life, I made a formula S is equal to S, where struggle is equal to success. और मैंने काफ़ी बार सुन लिया, आपने बोला struggle 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 आज पूरे podcast में। तो what is your say on this formula? Is it valuable? Should people also take this up? Of course it's valuable, guys. Even me at this point of time, age of phase, I'm still open for the suggestions. I'm still open for the polishing grilling. इसका ये मतलब है कि आप स्ट्रगल से मतलब आप बेबी स्टेप लेना सीखो। दूसरी चीज़ ऑलवेज बी ग्राउंडेड एंड रेडी टू ओपन टू लर्न। सो स्ट्रगल, जैसे मैंने बोला ना, मैंने बहुत फेक ऑडिशंस दिए हैं, और जैसे कि मैंने बोला बहुत से ट्रोलिंग मैंने आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग्स एंड ऑल। तीसरी चीज़, आप किसी को ना ब्लाइंडली फॉलो भी मत करो, मतलब जो चक्का-चौंध की चीज़ें आप देखते हो ना गाइस, ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लिंकी वो गोल्ड हो या सोना हो या डायमंड, ऐसे लोग बोलते हैं, कांच भी हो सकता है। सी सो वही चीज़ है, स्ट्रगल से मेरे कहने का ये मतलब है, आई हैड माई ओन सेट ऑफ स्ट्रगल्स। फॉर मी स्ट्रगल वाज लाइक क्लियरिंग एन एजेंसी, जो कि फेक था एजेंसी, ना कि रियल एजेंसी था। फॉर मी स्ट्रगल वाज टू गो थ्रू मेंटली दोज बुलिंग थिंगी। काफ़ी लोग के लिए बोला अरे ये मियाँ क्या बोल रहे, दिस इज नॉट स्ट्रगल, बट नो गाइज, मी ऑन द अदर साइड, मुझे पता है मेंटली कितना मैं वहाँ से होके गई हूँ। चौथी चीज़, टू प्रूव द पीपल कि मी ऑन द डस्कियर साइड, डूड आई कैन स्टैब्लिश माई ओन नेम एंड फेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने मुझे कितना नीचा या नीचे खींचने की कोशिश करी है। पाँचवीं चीज़, हर जो सोशल मीडिया, जैसे मैंने आपको बोला था, आप रियलिटी शो में देखते हो, आप सोशल मीडिया में लेके लिख देते हो, बोल देते हो, इट हिट्स लाइक एनीथिंग व्हिच आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस। बाकी वही चीज़ है, ऑलवेज बिलीव इन टेकिंग बेबी स्टेप, चकाचौंध में झट से मत आ जाओ। तीसरी चीज़, ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड बी ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाटएवर यू हैव। मैं तो आज भी कहती हूँ शुक्राना टू जीसस एंड थैंक्स टू जीसस एंड एवरी गॉड, बिकॉज बीइंग क्रिश्चियन, बट देन आई फॉलो एवरी रिलीजन, और सम और द अदर वे थिंक आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। So yes. So शॉर्टकट का कोई मतलब सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस, ये फॉर्मूला हैंस प्रूव्ड हो चुका है, इसके ऊपर हम बुक लिख लेंगे। अब इसमें मुझे बात बताओ, मैंने आपके बारे में फेम के लिए पढ़ा, आपने ये कर लिया, आपने टीवी शोज कर लिए, बट बिहाइंड द कैमरा there is something which you are doing for grooming. Yes. So what is that? I want to understand about वो grooming वाला part क्या है? चीरू, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ग्रूमिंग के सेंस में। As I told you कि मुझे ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, I didn't have any sort of godfather apart from supportive family। तो ग्रूमिंग से ना एक इंसान की पर्सनालिटी यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। So for all those people जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, या फिर लिंक लीड्स में एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती, या फिर दे डोंट नो वेयर टू अप्रोच, हाउ टू गो, वेयर टू गो, उनको नज़र में रखते हुए मैंने बोला ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट आई शुड ओपन, और आई माई सेल्फ शुड गेट इनटू ग्रूमिंग। क्योंकि जब मैं उस तरफ थी, या जब मैं स्टार्टिंग स्ट्रगल में थी, तो मेरे को पता ही नहीं था यार how to get dressed up, how to speak, how to prepare yourself before going to any institutions, चाहे वो आपका corporate हो, entertainment हो, ये normally आज मैं आपसे आई हूँ। This is also hairstyle, makeup, this is a part of grooming। चाहते तो मैं अपने night suit में आ सकती, but I know night suit won't work out। ये छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे लोगों को बताना अच्छा लगता है, especially to the people who are underprivileged, who cannot afford
For them, I take online. Plus, me being Christian, I'm associated to certain NGOs जहाँ पे मैं महीने में या हफ्ते में ऐसे ऑनलाइन देती हूँ, या फिर अगर पॉसिबल हो जाए तो फिजिकली जाके उनको सिखाती हूँ. So that's how I am also simultaneously. This is my bread butter simultaneously. Plus, जो मेरे से थोड़ा बहुत पुण्य हो पा रहा है वो कर रही हूँ मैं. So this is so beautiful यार. I always say कि हाँ पहनावा आपके लिए important है. ग्रूमिंग में सिर्फ पहनावा ही नहीं आता, इट इज हाउ यू, इट इज हेड टू टो वाला पार्ट, इट कवर्स एवरीथिंग. जो शायद मैंने पर्सनली व्हेन आई वाज डूइंग फ्रैंकलिन का कोर्स एज अ कैबिन क्रू, सो आई पेड मनी एंड अंडरस्टूड अबाउट ग्रूमिंग. दिस इज व्हाट गाइस, क्योंकि आज के टाइम पे ना गाइस नोबडी टॉक्स टू डायरेक्टली. पहले हम क्या कहते हैं, आप और मैं हो, पहले हम शक्ल देखते हैं, पहले पहनावा ओढ़ावा देखते हैं, फिर हम जज करते हैं यार मैं से बात करना कर. सो लेट योर पर्सनालिटी गेट एंड ग्रैब दैट अटेंशन बिफोर यू स्पीक फॉर योरसेल्फ. सो मुझे ना कहीं मेरा दिमाग ना चैरिटी के ऊपर ही घूमते रहता है हमेशा. और मेरे पूरे पॉडकास्ट में आई वाज वेटिंग के समथिंग कम्स अप, एंड नाउ लिटरली यू सेड दैट यू आर वर्किंग विद NGOs, यू आर वर्किंग विद सोशल वर्क वाला सेक्टर, अंडर प्रिविलेज सेक्टर फॉर ग्रूमिंग. So firstly, I want to invite you to my shelter in Bombay, where for that thank you so much. मैं खुद बोलने वाली थी आपके बारे में, जितना मैंने पढ़ा और सुना है, that you're doing an amazing work and job guys. मतलब इतने young age में to take care of all the homeless people, चाहे old age हो या youngsters हो, बच्चे हो, fooding हो, XYZ. I really look up to you. तो मैं तो NGO वाले सेंस में कुछ भी नहीं हूँ जहाँ तक आप पहुँचे हैं. Thank you. But definitely I would like to invite you to my shelter. Come and do grooming for my kids. Let these kids also feel the part of grooming first. Yeah, sure. And secondly, हमारे ये segment में एक last question रहता है, where since the name of the podcast is इंसान बनो, and no doubt we are जितना मर्जी हम जैजी बन जाए, उससे पहले हमें इंसान बनना है. So इंसान बनो के ऊपर जो podcast है, उसके ऊपर क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहोगे, इंसानियत के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, or the thing you are seeing nowadays, or you are feeling nowadays? What is your one strong message to those women who are maybe struggling like you were struggling in your past, जो body shaming हो रही है, जो color shaming हो रही है, जो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अटक रहे हैं, उनके ऊपर क्या आप बात करना चाहोगे related to इंसानियत? Yeah, there are 2-3 key points I would like to highlight इंसान बनो sense में. Guys, first of all, stop judging people. First you come to their shoes and then realize कि वो किस चीज़ से जा रहा होगा, चाहे mentally, physically, financially, emotionally, we don't know. So stop judging people. Second of all, हमेशा बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड. दूसरी चीज़, हमें ना हमेशा लोगों की ना हेल्प, इट्स नॉट कंपल्सरी चीनू कि हमें मेटेरियलिस्टिक सेंस में हेल्प करें कि पैसा दे के हेल्प करो. आप कहीं आ जा रहे हो, हम जैसे मैं गाड़ी में भी ना हमेशा मेरे साथ बिस्किट्स और चॉकलेट्स रहते हैं. सो कुछ मांगते हैं तो मैं पैसे नहीं बट उनको खाने में दे देती हूँ कि भाई नहीं ये बिस्किट्स है, खाने में है. तीसरी चीज़ काइंड ऑफ हेल्प वी कैन डू इंसान बनो सेंस में कि हम इमोशनली एटलीस्ट हम अपना सपोर्ट तो दिखा सकते हैं गाइस. इमोशनली आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट में क्या लगता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम और इमोशंस. कल को फॉर एग्जांपल आई लुक वेरी बोल्ड कॉन्फिडेंट बट यू नेवर नो मैं मेंटली किस चीज़ से जा रही हूँ. बट शायद आपका एक कंधा या आपको बोलते हाँ मियाँ तो ठीक है, और यू नेवर नो आई स्टार्टेड क्राइंग. दैट वुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड टू मी. not physically, not materialistic sense में, not financially, but बहुत बड़ा support होगा. तो वही चीज़ कह रही हूँ कि इंसान बनो में सिर्फ ये पैसे ये materialistic sense नहीं, but emotionally also you can support to a lot of people. आप उनको इतना comfort तो करो कि सामने इंसान खुद आपसे open up हो जाए. Beautiful thing is people keep asking me कि चीनू how can I donate? I always tell them I don't need your money. If you are ready to give your time and warmth to my children, so please do come. So it is not only about money. पैसा ही सब कुछ नहीं है. हाँ पैसा ज़रूरत है एक चीज़ चलाने के लिए, बट उसके साथ साथ में आपको वार्मथ, और जैसे कि मिया ने बताया कि आपको इमोशनल वे में सपोर्ट करना है और अपने इमोशंस दान में देने हैं. सो कहीं ना कहीं आपकी खुशी है जो आपको दान में देना है, और सामने वाले का सैडनेस अपने पास एक्सेप्ट करके उसको मोर हैप्पीनेस देनी है. सो this is again a jazzy question for you. You have been seeing partying girl, party animal, this, that, wo. फिर what about your drinking habits, your eating habits? Are you a 100% core alcoholic? यार ये तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी सा मैं बोलूँगी उन लोगों के लिए, क्योंकि अगेन आई से कि हम जजमेंटल सोसाइटी में रहते हैं. तो मेरे पूरे सोशल मीडिया में ना you're gonna see me partying, dancing, posing with some of the other drink.
like a fancy drink, but of course this is really a juice. So guys, let me tell you, Mia Lakra, like I don't drink, I don't smoke, I'm not into any of the alcoholic or nasheli padarth, whatever XYZ. मैं किसी भी चीज़ में नहीं हूँ. I'm a very simple person, Chino. I'm a chai coffee person, नारियल पानी या juices. और या एक और चीज़ है कि मैं लोगों को लगता है मैं खाती नहीं, बट बिग टाइम फूडी. मेरी आदत है आधे के एक घंटे में थोड़ा खाना पीना. सो वही मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ. इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लिट्स एंड ग्लैम पीपल जज कि बहुत खाने के हैबिट्स अजीब और गरीब होंगे, और मे बी आई एम इनटू ड्रग्स और अल्कोहल XYZ, बट ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी नॉर्मल चाय कॉफी वाली लड़की हूँ यार. सो बेसिकली पूरे पॉडकास्ट में मेरे को यही समझ आया कि लेट्स स्टॉप जजिंग पीपल, बिकॉज आपके सोशल मीडिया से प्रोफाइल से आप नहीं सोच सकते कि इंसान ऐसा है. ये इंसान एक डिफरेंट परसेप्शन का हो सकता है, डिफरेंट हार्ट का हो सकता है. जैसे कि हमें सोशल मीडिया पे दिखता है कि कोई इंसान बहुत प्यारा है, बट वो अंदर से पता चलता है कि फुल ऑन एटीट्यूड वाला है जब भी बात करो उनसे. सो इट इज थिंग वी शुड स्टॉप, वन थिंग वी शुड स्टॉप, जिसके ऊपर शायद गवर्नमेंट को टैक्स लगा देना चाहिए, वो जजमेंट परसेप्शंस. आई गेस अभी आपने भी रियलाइज करा होगा दैट सोशल मीडिया वाली मियां एंड दिस मियां इज क्वाइट डेफिनेटली यार, डेफिनेटली देयर आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, आई वुड से. द वे वी स्पोक ऑन दैट डे एंड द स्पोक से तो फिर भी आपको बात करके फिर भी समझ आ जाता है, बट आप जैसी प्रोफाइल देखते हो एक इंसान की, आपको लगता है यार ये तो हाई फाई है, आउट ऑफ द रीच है, ये कभी बात नहीं करने वाले, ये ऐसा नहीं है. बट दिस इज मिया फॉर यू, जो एकदम साधु संत है. बट साधु संत नहीं, बट आई एम जस्ट लाइक मॉडर्न येट होमली सॉर्ट ऑफ थिंग. सो दिल से साधु संत है, और बाहर से शी इज द हॉट diva. एंड thank you to Tizoy once again for this beautiful drink, beautiful aura, beautiful atmosphere. Thank you Gaurav for being behind the camera and with so much of patience. हमने बहुत ज़्यादा धंधा खराब कर दिया Tizoy का आज, but nevertheless they are very supportive. Thank you Mia for being here. एक और चीज़ मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगी. Thanks to Chino as well for flying all the way from Mumbai to here to shoot out my podcast, and also to Gaurav जो patiently मुझे बोल रहे थे कि मिया इस फ्रेम में बैठो, उस फ्रेम में बैठो, ऐसा ना करो, because guys it takes a lot of hard work and the entire team work to make anything successful. So yeah, from my side, welcome to Delhi and thank you so much to Chino and Gaurav. Thank you, and I hope कि whenever I am in Delhi, I'll keep meeting you. Thank you so much. And people who are watching this, please do subscribe the channel, please like it. और जितना प्यार देते हो वैसे तो देते ही रहो, उससे ज़्यादा और दो, because we will be getting more such inspirational personalities on our show. Thank you for loving and keep blessing. Take care. Bye.